आज एक विशेष दिन है जहां परमेश्वर ने एक और अपनी दासी को चुना है अपनी कलीसिया की अगुवाई के लिए। जो YouTube चैनल को इस समय देख रहे हैं, हम आपके सामने एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप इसको समझें। आपके सामने मिसेस एलिज़ाबेथ सिंह, हमारे भाई सुनील सिंह जो कि पास्टर थे प्रतापगढ़ के, उनकी पत्नी आज विशेष अभिषेक जिसको कि हम ऑर्डिनेशन बोलते हैं उसके लिए आए हैं। और हम बाबा जी से अभी थोड़ी देर में अनुरोध करेंगे और माता जी से कि वो आकर इस कार्यक्रम में हमारी सहायता करें। और आज मैं उनको आपके सामने और बाबा जी के सामने प्रस्तुत करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको बड़ी आशीष दे। और आपके दोनों बेटे बेटियां यहाँ पे हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। सो हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आप लोग सब प्रार्थना में अपने अपने घरों में प्रार्थना में रहें, इस प्रोग्राम को देखें और हमारी बहन मिसेस एलिज़ाबेथ सिंह उनके लिए प्रार्थना करें। जय यीशु। In the name of the Lord Jesus Christ, the head of the church, we are in Yeshu Darbar here to ordain you by the Bishop of Yeshu Darbar, Most Reverend Professor Dr. R.B. Lal, as the pastor of Full Gospel Church, Sagra, Pratapgarh. In this act of ordination, we believe that it is God who gives you grace and authority for the office and work to which you are specially called. We act and speak as part of the one holy Catholic and Apostolic Church. May I ask you, are you confident that you are truly called by God to the office and work of a pastor in his church? I am confident that I am so called. Do you accept the Holy Scriptures as containing all things necessary for salvation through faith in Jesus Christ, our Lord and Savior, as the supreme and decisive standard of faith? I do accept them. Do you accept the Apostles' and Nicene Creed as witnessing and safeguarding the faith which is set forth in Scripture? I do so accept them. Will you be diligent in the reading of the Bible? I will, with God's help. Will you endeavor to lead a prayerful and disciplined life and so guide your household that both you and your family may be worthy examples to the flock of Christ? I will, with God's help. Will you, with the Holy Spirit, help of the Holy Spirit, continually stir up the gifts of God that is in you, so as to make Christ known to all people? I will, with God's help. Will you faithfully minister the sacrament and preach the word of God to the people committed to your charge? I will, with God's help. Will you be faithful in visiting sick, in caring for the poor and needy, and help your people to be good stewards? I will, with God's help. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, with the authority vested in me as the bishop of this church, and the power of the Holy Ghost, I lay hands upon this dear sister, Elizabeth Singh, to be the ordained priest and pastor, senior pastor of the church, Full Gospel Church, Sagra, Pratapgarh, UP. May the Holy Spirit empower you, fill you with His fire. May the God's hand be upon your head. He must be behind and before you. Let the wall of fire be around you day and night. You and your children and your congregation
be covered under the fiery protection of the God Almighty, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Give you the full protection along with the saints in heaven, joining me to bless you, my daughter. Be filled with the fire of the Holy Ghost in Jesus' name. Amen. May I present you this word of God as a gift on this occasion, Thank you. and the certificate of your ordination that you will serve the Lord with all authority given unto you. I will with the power of the Holy Spirit. Amen. अभी ये समय होगा, अभी जिनका अभिषेक हुआ है बहन एलिजाबेथ सिंह, परमेश्वर के वचन में से 5 मिनट आप बोलेंगी और अपनी गवाही को वे हमारे मध्य में रखेंगी। और इसके पश्चात तैयार रहें उनके बेटे और बेटी एलिजबेथ सारा सिंह और स्टीवन एरिक सिंह, वो एक गीत को प्रस्तुत यहाँ पर करेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारा जिंदा परमेश्वर आज और कल और युगानुयुग एक से रहने वाला परमेश्वर है। वही चुनता है, वही सामर्थ देता है, वही अभिषेक करता है, वही अपना बल देता है। अगर हम उसके साथ नम्र और दीन होकर के इसके चरणों पे आते हैं तो प्रभु अपने निश्चित समय से अपने उद्धार का कार्य और अपना अद्भुत काम हमारे जीवन में करता है। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं आपके बीच में यीशु दरबार में हूँ और यीशु दरबार के सारे पुरोहितों के बीच में और उनके सहयोग के द्वारा और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, खास तौर से बाबा जी के प्रोत्साहन और प्रार्थना के द्वारा मैं आज यहाँ इस अभिषेक स्थान में इस अभिषेक को पा पाई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। लगभग 33 साल पहले परमेश्वर ने एक वचन मुझे बार बार दिया। उस समय मैं नहीं समझ पाई क्योंकि मैंने बचपन से ही अपना जीवन प्रभु के चरणों पे समर्पित कर दिया था और मैं परमेश्वर की डर भय में और उसकी पवित्र आत्मा की अभिषेक में बचपन से ही चलती आई थी। क्योंकि मेरे माता पिता जो प्रभु की सेवा कर रहे थे, रेवरेंड एफ.एन. ग्रीन और मेरी माँ विमला ग्रीन, उन्होंने जो सेवाएं करी और जो जीवन जिया, उनके त्याग, समर्पण और अभिषेक के जीवन को देख करके मैंने भी वही जीवन पे चलने का निर्णय लिया था बहुत ही छोटी उम्र से। और प्रभु ने उस समय से मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। जब मैं दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती थी और वचन का इतना ज्ञान नहीं था, परंतु जब मैं दुआ प्रार्थनाएं करती थी तो प्रभु के अद्भुत काम होना शुरू हो गए थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बचपन से ही मुझे चुना था, परंतु ये दिन है जो उसने नियुक्त करा जब मैं उसके हजूरी में खड़े होके इस दीक्षा को ग्रहण कर सकी। क्योंकि परमेश्वर ने 33 साल से पहले मुझे जो वचन दिया था वो बार बार मेरे पास यही वचन आया करता था और मुझे नहीं समझ में आता था यही वचन क्यों आ रहा है। आज मुझे समझ में आता है। वो इस प्रकार है, यशाया उसका 60 अध्याय और पद 1, 2, 3 और 4। यशाया 60 अध्याय पहले 4 पद। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों में घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा और अन्य जातियाँ तेरे पास प्रकाश के लिए और राज तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठा और देख, वे सब के सब इकट्ठा होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ उठाई जा रही हैं। आमीन। यशाया उसका 61 पहले पद से 3 पद तक। ये भी अभिषेक के साथ परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया था
कई साल पहले। प्रभु यहोवा की आत्मा तुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए तेरा अभिषेक किया और तुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंधुआओं में के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर के राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासता हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के ब्रांविश और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उनकी महिमा प्रकट हो। आमीन। ये अभिषेक परमेश्वर ने मेरे ऊपर किया और उस दिन से मैंने सुसमाचार प्रचार करने की सामर्थ प्रभु की ओर से पाई और परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना और उपवास के द्वारा और अपनी गहराइयों में लेता गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अपने निश्चित समय में परमेश्वर ने मुझे इस योग बनाया कि मैं कलीसिया की पास्टर हो करके कलीसिया को संभाल सकूँ। मेरे हस्बैंड, मेरे जीवन साथी रेवरेंड पास्टर सुनील सिंह, जो अब प्रभु के पास हैं, उनके साथ मैंने सेवाएं करी और कार्य किया है। हमने समर्पण और त्याग के साथ अपने जीवन को प्रभु के हजूरी में रखा और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमारी कोई योजना नहीं थी कि हम इस कार्य में आगे बढ़ें, परंतु बड़ी प्रार्थना के साथ जब हम प्रभु के निकट बैठे रहे, प्रभु से जब मैं मांगती रही अपने बच्चों के साथ कि प्रभु तू इस कलीसिया के लिए अपने दास को चुन, और उस समय परमेश्वर ने मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में ये बोझ दिया और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात मुझसे कही और मैंने इसको एक्सेप्ट करा प्रभु के निकट। मैंने कहा प्रभु जैसे तेरी इच्छा, जैसे तेरी मर्जी हो, क्योंकि मैं केवल प्रभु के अनुग्रह के द्वारा एक एक पल आगे बढ़ सकती हूँ। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो प्रभु ने आज तक संभाला है, आज तक अपने अभिषेक और सामर्थ को दिया है, अपनी पवित्र आत्मा की आग और सामर्थ के द्वारा खड़ा कर रखा है और अपने जलाल और महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। ये केवल प्रभु के अनुग्रह के द्वारा है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना है और इस योग समझा है। दुनिया के लिए नहीं, दुनिया के सामने नहीं, मैं प्रभु के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ी हूँ और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और शक्ति जो मेरे अंदर है, मैं उसके लिए नम्र और दीन होकर के मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे अंदर कोई खूबी ना लियाकत, मेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, परंतु केवल परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा प्रभु ने जो मुझे चुना है, मैं इसलिए प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के नाम को धन्य कहती हूँ, उसके नाम को मुबारक कहती हूँ कि परमेश्वर ना चीज़ को, जो कुछ भी नहीं है, प्रभु उनको चुनता है और उठाता है और अपनी सामर्थ देता है। मैं केवल उसके सामर्थ के द्वारा और उसकी शक्ति के द्वारा ही मैं हूँ जो कुछ हूँ, और मैं आगे भी अपने आप को प्रभु के चरणों पे नम्र और दीन करती हूँ और यही कहती हूँ प्रभु अपने सामर्थी हाथ मेरे ऊपर हमेशा रख और अपने जलाल और महिमा के लिए इस्तेमाल करता चल। मैं घटती जाऊं प्रभु और तू बढ़ता चला जाए। हालेलुया। सारा जलाल और महिमा मैं प्रभु को देती हूँ, प्रभु को धन्यवाद कहती हूँ और यीशु दरबार को धन्यवाद कहती हूँ और हमारे अजीज़ रिस्पेक्टेड बाबा जी को मैं धन्यवाद देती हूँ जो उसने इनकरेज करा और मुझे इस योग समझा कि इस ऑर्डिनेशन में मुझे ऑर्डेन कर सके। मैं परमेश्वर को धन्यवाद और सारी महिमा देती हूँ। आमीन। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में, सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में, सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में। जंजीरों को जो तोड़ेगा, जो तोड़ेगा, जंजीरों को जो तोड़ेगा, जो तोड़ेगा। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। जंजीरों को वो तोड़ रहा, वो तोड़ रहा, जंजीरों को वो तोड़ रहा, वो तोड़ रहा। Oh yes, Lord, there's power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, 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 to break every chain. Yes, Father. पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान।